Yesterday we discussed how we can write the file by using the absolute path concept. We have created yesterday, again we are creating. Hello world, instead of doing this thing, this is for testing the concept of absolute path in text file. I'm using W mode, that means whatsoever already exists in the file, it will erase it. Again I am compiling it. It will show the things. Now we can see it again because so many students yesterday left the class when we discussed this concept. Now CS, what is the path? Networking. In networking, DF. In this way also we can create the file. We can read the content of the file also, and we can create the content also. Instead of using, now we already created the file. Now again I'm changing the file from Malware. Yani like let's see, is there any file? Networking, malwares. Now I am reading the content. I'm just making this thing as a comment. What's the error? Extra comment. What is the error? I just made all the things as a comment. Anyway, I'm just erasing all the things. Now, if I want to read a particular line, we already discussed, but we will discuss in another way also. T, using the read lines concept. It is storing into this file. Let's see how it will print. It will print all the things in the list form. Suppose if I just want to print only the first line by using the list concept, I can print. ये फर्स्ट लाइन का सिर्फ यहीं तक कॉन्सेप्ट डिस्प्ले हुआ. In the same way, you can display the concept 1, 2. In this way, you can display the lines also. We already discussed this concept in the read line also, when we are reading only one line at a time. Single line. After this, if I want to read another line, 3 lines in this way also. यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया कि हम रीड लाइंस में सारा कंटेंट रीड होता है, बट इफ आई वांट टू प्रिंट ओनली अ फर्स्ट line, then I can also print in this way. Second line, third line. In read line also we can print the first line, second line and third line in this way. तो ये आपका different ways है. In these ways you can read the line. Suppose अगर if you are specifying certain byte, after reading 30 bytes, यहाँ पर चेक करते हैं उसने इतनी बाइट्स को डिस्प्ले किया.
आफ्टर दैट इट विल डिस्प्ले। यहाँ पर मैंने 20 किया और यहाँ पर सपोज इफ आई एम स्पेसिफाइंग 15, तो लिमिटेड in the first line it will read only 30 bytes, in the second line second times after 30 bytes it will read 20 characters obviously related to the line, and then it will read the another line after 20, यानी कि after 50 bytes it will read another line। यहाँ तक कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा हो, then you can ask। मैम अगर ये रीड लाइन को मैं 3 अलग वेरिएबल में डालूंगा तो भी ये सीक्वेंस में रीड करेगा ना, पहले 30 उसके बाद वाले 20। हाँ, यहाँ पर तुम ये भी कर सकते हो बेटा कि अगर मुझे यहाँ पर रीड लाइन ही कर रही हूँ और यहाँ पर तुम रीड कर रहे हो, तब भी आपका वही चीज़ें आपका डिस्प्ले करेगा। ज़रूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू यूज़ दैट थिंग। यहाँ पर इस फॉर्म में भी आप कर सकते हो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू यूज़ द रीड लाइन। आप रीड फंक्शन से भी यू विल गेट दैट सेम वैल्यू। उसके बाद ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू स्टोर इन सम वेरिएबल देन यू कैन आल्सो डू इट इन दैट वे। तो यहाँ पर ये डिफरेंट वेज हैं। इन दीज वेज यू कैन रीड द concept related to the file. Yesterday we discussed related to how many ways we can write the information, और ये आपका read information. If you are not specifying anything inside the parenthesis read line में या read में, तब वो obviously वो आपका पूरी लाइन या पूरा कंटेंट करेगा। रीड लाइन में इट विल रीड द एंटायर लाइन, इन द रीड फंक्शन इट विल रीड द होल कंटेंट, यानी कि सारा कंटेंट फाइल से रिलेटेड। अब यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि सपोज yesterday we discuss the searching operation related to the character base. Now we will discuss the concept इसी फाइल में ही करते हैं, that will be convenient for us. अब when you are, अब यहाँ पर आज का क्वेश्चन है कि now you have to read the number of characters. How many characters is already exist in your file? Count the number of character, नहीं, words in your file. वर्ड्स के काउंट करने के लिए हमने पहले कॉन्सेप्ट किया था। पहले रीड करते हैं, रीड से रिलेटेड चीज़ों को वी आर स्टोरिंग इन सम वेरिएबल, एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज, सपोज इफ आई एम स्टोरिंग इन स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, वो स्प्लिट कर देता है, डिवाइड कर देता है पूरे सेंटेंस को डिफरेंट वर्ड्स में। ऑब्वियसली अगर इफ आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग इनसाइड द पैरेंथेसिस, वो स्पेसिस के अकॉर्डिंग डिवाइड करेगा। If you will specify something, some character inside the parenthesis, then obviously it will divide the word according to that particular character. अभी हम सिर्फ स्पेसिस के बेसिस पे कर रहे हैं और यहाँ पर प्रिंट एच। तो यहाँ पर देखो उसने सारा कुछ आपका वर्ड्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया। ये सारे वर्ड्स हैं, इंडिपेंडेंट वर्ड है। जब इंडिपेंडेंट वर्ड हो गए तो आप इट इज़ अप टू यू हाउ यू आर प्रिंटिंग। मैंने सिंपल स्ट्रेट अवे किया है। इफ़ यू वांट टू प्रिंट बाय यूजिंग द फॉर लूप देन यू कैन आल्सो शो यू द वैल्यू इन द सेम वे। यहाँ पर इस फॉर्म में आ रहा है, एंड फंक्शन यूज करते हैं सो दैट इट विल शो अस द रिजल्ट हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर अब डिस्प्ले नहीं कर रहा बिकॉज ये सारा है चीज़ें आ रही है, पर ये इसने डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू द करेक्ट वर्ड्स। नाउ इफ आई वांट टू पुट एनी कंडीशन, सपोज इफ आई एम सर्चिंग, क्या सर्च करें इसमें, ऑफ वर्ड यूज हो रहा है कहीं, दैट, हाँ हेलो, ऑफ सर्च करते हैं। इफ आई इक्वल टू ऑफ, प्रिंट भी वही करते हैं। और इफ यू वांट टू डू द काउंटिंग ऑपरेशन देन वी कैन परफॉर्म द काउंटिंग। Outside the loop we can print the value of C। चेक करते हैं,
तो यहाँ पर उसने ऑफ था, पूरे एंटायर आपके कंटेंट में जो टेक्स्ट था उसमें 6 ऑफ है. अगर इफ यू वांट टू count the number of character present in your file, how many words present in your file, just remove the condition, then automatically it will show there are 205 words present in your file. यहाँ तक समझ आया कि whenever you are performing the word related search operation, then you have to split that thing. स्प्लिट करोगे ओनली देन यू विल एबल टू डू दोज थिंग्स. अब इसमें दूसरा मेथड भी है, आप साथ में यहाँ पर इफ यू डोंट वांट टू डू दिस थिंग हियर, देन अनदर वे ऑल्सो, यहाँ पर टी डॉट स्प्लिट, हियर ऑल्सो यू कैन यूज द स्प्लिट फंक्शन. बट रीड तो करोगे, रीड के बाद आप इसमें स्प्लिट कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली अगेन इट विल शो यू द सेम वैल्यू. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ कुछ कन्फ्यूजन? ये हम पहले कर चुके हैं, 11th में किया था, इसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, पर एक्चुअली उसका यूज़ यहाँ था. मैंने उस टाइम करवा दिया था क्योंकि स्टूडेंट्स भी कह रहे थे और उनको भी इंटरेस्ट था, तो नॉर्मली हमने 11th भी करवा दिया था. पर ये 12th का पार्ट है कि ऑलरेडी फाइल में पहले से कंटेंट है और उसमें हम सर्च कर रहे हैं. अनदर ऑपरेशन जो हमने पहले भी कर चुके हैं 11th में, पर सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. If suppose if you want to know कि how many of and do present in your file, or do, it could be any letter, word. यहाँ पर सिर्फ काउंट कर रहे हैं, दोनों को इकट्ठा ही काउंट करेंगे. चेक करते हैं हाउ मेनी वर्ड्स. तो देयर आर टोटल, यानी कि डू आपके यहाँ पर पूरे आपके टेक्स्ट में 9 ही होंगे, 3 होंगे क्योंकि 6 तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था ऑफ. इफ यू वांट टू चेक सेपरेटली देन यू कैन आल्सो कि डू कितना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा. देयर आर ओनली 3 डू, तो ऑब्वियसली यू कैन इजीली मेक आउट कि देयर आर 6 + 3 9 टोटल. अब अगर क्वेश्चन आता है कि नाउ यू हैव टू सेपरेटली काउंट हाउ मेनी डू एंड ऑफ इन योर फाइल, तो डू के लिए अलग कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और आपको इफ ऑफ के लिए यू हैव टू स्पेसिफाई अनदर कंडीशन, and you have to print both the values separately. Or here you can see number of do of. नेक्स्ट लाइन में अगर प्रिंट करना चाहते हो तो आपको पहले बताया था स्लैश एन यूज़ कर सकते हो, इट विल शो योर रिजल्ट इन द नेक्स्ट लाइन. इसको प्रिंट करते. यहाँ तक समझ आ रहा है? कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा हो? ये हम पहले कर चुके हैं, 11th में हमने कॉन्सेप्ट को स्ट्रिंग में किया था, पर नॉर्मली ये फाइल हैंडलिंग का पार्ट है 12th का, मैंने तब डिस्कस कर लिया था. पर क्वेश्चन बेसिकली यहीं से ही आते हैं. 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क का, 6 नहीं अब तो ज़्यादा वेटेज होगी क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन वर्ड से आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन बाइनरी फाइल से आता है. CSV फाइल उन्होंने कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया. अर्लियर जो पहले था वो CSV फाइल का सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आता था. मे बी दे विल ऐड 2 मार्क क्वेश्चन इन दिस ईयर. तो वो आपका कितना हुआ, 3 + 2 + 2, तो 7 मार्क्स का, 7 to 8 मार्क्स का, और एक सर्चिंग का भी ऑपरेशन आता है. तो 8 to 9 मार्क्स का फाइल हैंडलिंग का आप कॉन्सेप्ट कंसीडर कर सकते हो कि एग्जाम में यही आएगा. तो इन दिस वे वी कैन ईजिली फाइंड आउट कि हाउ मेनी डू प्रेजेंट इन योर फाइल, हाउ मेनी ऑफ प्रेजेंट इन योर फाइल. और डू और लिखा है तो देन यू हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशन in the same if statement. और अगर उन्होंने separately लिखा है कि that you have to find out do and of, then you have to separately count both the words. अब इसमें next question आता है कि suppose that you have to find out those words which are starting with a particular letter. जैसे suppose I0, अगर I का 0 start होता है do से, that we have to count those numbers. That means you have to count those words which are starting with D or which are starting with I or which are starting, हम D से ही करते हैं तो इसमें काउंट कर चेक करते हैं. बोलो मैम. जो आपने अभी प्रोग्राम दिखाया मैम, ये वो वर्ड्स को तो काउंट नहीं कर रहा ना मैम, जो जिसके अंदर डू टू है मैम, लाइक जैसे इंडिपेंडेंट वर्ड.
independent number of words which are part of which are starting with D. प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर बता दिया कि देयर आर 11 वर्ड्स, क्योंकि इसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्ड भी होगा, कुछ और भी वर्ड्स होंगे विच आर स्टार्टिंग विद. तो देयर आर 3 or 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग कि हाउ मेनी वर्ड्स आर प्रेजेंट इन योर फाइल, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, display those words which are starting with a particular alphabet, how many he or she present in your file, how many he and she or he or she. तो और आएगा, then you have to specify the condition in a single if statement, और अगर and specify किया हुआ then you have to specify the condition in the separate if statement. और ये आपका 4. तो there are 4 type of questions normally words में. Yesterday we discussed the questions related to कि how many characters present in your file. जब आपका करेक्टर से रिलेटेड डिस्कस करते हैं देन यू डोंट हैव टू यूज द स्प्लिट फंक्शन, इसी में ही करते हैं. रेस्ट ऑफ द कोड विल बी द सेम. यहाँ पर रीड किया, हम यहाँ पर स्प्लिट नहीं करेंगे बस, और बाकी आपका चीज़ें आपकी एज इट इज चलती रहेंगी और उसमें आपकी स्टार्टिंग का कुछ नहीं होता है. तो बाकी आपके कोड में कोई चेंज नहीं आएगा. अब इसमें हम चेक करते हैं. अगर मैं कंडीशन हटा देती हूँ, चलो कंडीशंस को ही लेकर चलते हैं. क्या गड़बड़ है? इसमें लेके नहीं रहा, कांट डिकोड. नहीं ले रहा है, पता नहीं. Anyway, I'm just removing all these things. तो यहाँ पर बताएगा there are 4. तो ये आपका करेक्टर बेस्ड है. Here I have just removed the split function. तो यहाँ पर split function है. If you are just removing the condition, तो आपका वहाँ पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो. तो आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताएगा. यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछो प्लीज. ये करेक्टर बेस्ड था. दोबारा बोलो बेटा. वर्ड्स बताएगा, कैरेक्टर्स बताएगा? ये करेक्टर बताएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्प्लिट नहीं लिखा. जैसे ही आप स्प्लिट वर्ड लिख दोगे, स्प्लिट वर्ड आ गया, तो स्प्लिट से फिर वो आपका वर्ड्स पे फोकस करने लग जाएगा, करेक्टर्स पे नहीं जाएगा. स्प्लिट हटा दिया तो वो आपका करेक्टर्स पे चला जाएगा. बाकी कंडीशंस वगैरह सेम रहेंगे. कोई डाउट, कंफ्यूजन? नो मैम.